शेल्टर्स में डाल दिया जाए और वहाँ से दूर कर दिया जाए। इस जब मोदी डरता है, जब मोदी डरता है। At the heart of our crowded streets lie silent souls, the stray companions we often ignore. But today their story roars. Yes, those beautiful stray dogs. For those so called animal lovers, a Supreme Court order to remove every stray dog from Delhi NCR has ignited streets, hearts, and headlines. Animal lovers demand compassion while authorities vow action. It's not about a policy, it's about coexistence. Coexistence of animals. Animals, specifically stray dogs, who actually exist as two features at present. First, stray dogs for the animal lovers, and secondly, the issue of concern for the citizens of India as per the Supreme Court of India. So this video is gonna be all about Supreme Court versus animal lovers. Like, yes, this is gonna be the title. Cut to the protests ongoing all across the roads of Delhi, Noida, Ghaziabad, actually in whole Delhi NCR, and cut to the Supreme Court orders regarding sterilization, vaccination, and shifting the stray dogs into the shelters. These two different perspectives, these two different ideas, when collapse and collide, lead to the situation called the protests, which are currently ongoing onto the roads of Delhi NCR. First of all, in this whole video, I'm not going to take any support or any, give any opinion of mine or perspective of mine regarding one incident, whether it's for the animal lovers or regarding the Supreme Court decision. Its whole video is going to be a little bit diplomatic, where I'll be covering the details, the actual facts on the basis of which the correct decision must be taken. So, before taking any decision or coming upon to any conclusion, I would like to mention this very statement of mine, that this issue of dogs being shifted to the shelters is just another propaganda of the government of India, or you can say the Supreme Court of India, indirectly Supreme Court of India, to overshadow all the current protests, all the current significant incidents which were going on till date. तो हम बात करते हैं सबसे पहले एनिमल लवर्स की. I am not against them. There are actual animal lovers who actually feed most of the dogs every day which are on streets. सच बात है ये बिल्कुल कि बहुत सारे ऐसे एनिमल लवर्स हैं, डॉग लवर्स हैं, जो हर दिन सड़क पे जितने भी डॉग्स हैं जिनका कोई शेल्टर नहीं है, कोई घर नहीं है, उनको खाना देते हैं और अपनी जिम्मेदारी से अपना खुद का इनिशिएटिव दे टेक एंड गिव देम द फीड. But then when it comes to the current statement, the Supreme Court issued that the reason behind the dogs being shifted to the shelters was that the cases of rabies and dog bites are increasing. Every year 20 to 30,000, like 28 to 30,000 something ka ratio of people are getting affected by this disease called rabies, which is a disease caused when a dog bites any person or an individual. तो इस डेटा के बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक ही ऑर्डर्ड टू रीलोकेट ऑल द डॉग्स, coming upon to taking the favor of the animal lovers. The animal lovers say that the dogs will get detached from their family members. I mean to say, what matters? The separation of the dogs from their family members, or their safety, or their vaccination, their sterilization. What matters? The safety of the 140 crores Indians, or the safety of the dogs
both matters. So I personally feel that the decision was quite apt taken by the Supreme Court of India. Now, the second perspective देखते हैं इसका, तो दूसरा perspective which is all going all across India is that कि the streets will be silenced, there will be no noise, the shopkeepers, security guards will be lost, there will be no dogs on the streets, and hence for the actual animal lovers it feels an act of separation. But then I must say कि at first place so it will take time to relocate all the dogs because the population of the dogs is not less in number that they will be relocated in a go, and if so I must question the infrastructure in terms of the shelters of the dogs across India. इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही नहीं इंडिया का कि वो इतने सारे डॉग्स को शेल्टर दे सकें, पहली बात तो ये। एंड दूसरी बात, अभी हाल फिलहाल में सबसे पहले वो डॉग्स जो कि हार्मफुल हैं, वो डॉग्स जो कि एक्चुअली किसी डिजीज़ से गुजर रहे हैं, उनको रिलोकेट करने की बात की गई है। एंड एट द एंड ऑफ द डे दे आर हार्मफुल फॉर अस because of the spike in the population, because of the spike in the pollution specifically, जो भी their moods are changing, their behaviors are changing, and कहीं ना कहीं they just get annoyed due to some or the other reason. As I said, climatic changes, whatever changes are going all across our surroundings, तो वो attack कर सकते हैं। तो again a major concern for the security of we human beings. But when it comes to major concern, तो डॉग्स को रिलोकेट करना तो वॉजेंट द मेजर कंसर्न, बिकॉज इससे ज़्यादा मेजर कंसर्न है इंडिया पॉल्यूशन डेथ रेट। व्हेन इट कम्स टू इंडियाज पॉल्यूशन डेथ रेट, तो करेंट एज ऑफ करेंट सिनारियो मैं बात करूँ फॉर लास्ट ईयर 1.5 लाख to 2 lakh people died due to pollution related diseases, asthma, skin cancer and other related diseases due to climatic changes and the pollutions caused by the vehicles. So I actually feel that at first place pollution must be taken cut off before relocating the dogs. Not just them, the crime rates, moreover the education, literary exam conduction systems must be improved. On humanitarian grounds, there are a lot of cases which must be focused upon and should be improved. There are a large number of legal proceedings still pending. There are a large number of political accountability decisions still have to be taken. This one for so-called animal lovers. I must say कि बहुत सारे एनिमल लवर्स हैं हमारे इंडिया में। हर कोई, मतलब मैं कहूँ तो हमारी मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन पेट्स, दे हैव पेट्स, ठीक है। हमने डॉग्स को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि रिलोकेट किया जाए, हमने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिए, हम रोने लग गए, हम बहुत ज़्यादा सड़क पर उतर आए एज ऑपोजिशन टू विच द पुलिस डिड लाठी चार्ज, ठीक है, जैसे कि मैंने वीडियोज़ में दिखाया इससे पहले बहुत सारी चीज़ें हुई। नाउ माई बिगेस्ट क्वेश्चन फॉर एज एस बिगैन विथ एनिमल लवर्स के लिए है, मैं कहती हूँ कि अगर आई हैव कम अप विद द डेटा एंड द डेटा सेज दैट 57.3% ऑफ मेन एंड 45.1% ऑफ वुमेन वीकली नॉन वेजिटेरियन कंजम्पशन है ये, ठीक है। दे कंज्यूम नॉन वेज एटलीस्ट वंस अ वीक, एटमोस्ट तो हम अंदाज़ा लगा ही नहीं सकते। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आप इतने अच्छे नॉन वेज कंज्यूम कर सकते हैं और अगर आप इतने अच्छे एनिमल लवर्स हैं तो आप क्यों कंज्यूम कर रहे हैं नॉन वेज? आप छोड़ दीजिए। आप आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, यू लिव फॉर फूड, यू कैन डाई फॉर फूड। नॉन वेज के बिना तो हम जी ही नहीं सकते बिकॉज वो हमारा फीस्ट है, हर ओकेजन पे हमें ज़रूरी होता है। मैं कहती हूँ मत स्टॉप करो, एटलीस्ट यू कैन जस्ट पुट डाउन द डेटा, एटलीस्ट यू कैन कंट्रोल इट। आप इतना जो अलार्मिंग रेट बढ़ता जा रहा है नॉन वेजिटेरियन कंजम्पशन का, नॉन वेज कंजम्पशन का, वो हम थोड़ा तो कंट्रोल कर सकते हैं, वो हम नहीं कर रहे। बट देन अगर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देते हैं कि हमें डॉग्स को रिलोकेट करना चाहिए जस्ट बिकॉज जनवरी 2025 से जून 2025 में केसेस अलार्मिंगली ऑफ डॉग बाइट्स वर अराउंड 35,000 और सो, उससे भी ज़्यादा थे, बढ़े। डॉग रेबीज़ के केसेस 39 और सो थे, 40 के आसपास थे, 39 समथिंग थे, ये आगे इंक्रीज ही होंगे। एंड देखा जाए, अगर सही बात देखा जाए, दिल्ली एनसीआर के रीजन में डॉग्स की पॉपुलेशन बढ़ भी तो चुकी है इतनी ज़्यादा। एंड वो स्ट्रे डॉग्स, ठीक है, वो स्ट्रे डॉग्स कौन सी कंडीशंस में रह रहे हैं, जिन भी कंडीशंस में रह रहे हैं, आखिर उन्हें कितने टाइम का खाना मिल जाता है, कितने टाइम का? और मतलब मैं तो ये कहती हूँ कि ऐसे कितने ही डॉग्स हैं जो कभी हर दिन कितने एक्सीडेंट्स का शिकार होते हैं। लाइक आई माई सेल्फ सीन दैट, नॉट जस्ट दैट द मदर डॉग्स बिचेस लाइक दे लिटरली ईट देयर ओन किड पपी फॉर लाइक दैट ड्यू टू हंगर, ठीक है। हम खुद
मैं कह रही हूँ कि हम में से आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन ना दे जस्ट गेट स्केयर ऑफ देम एंड हम उन्हें खाना नहीं देते जस्ट बिकॉज कि हमारी सोसाइटी से चले जाएँ, हमारी कॉलोनी से चले जाएँ। आधी रियलिटी ये है, हर कोई एनिमल लवर नहीं है, हर कोई डोंट लाइक डॉग्स एंड हर डॉग इज़ नॉट हैप्पी, हर डॉग इज़ नॉट गेटिंग दैट गेट फुलफिल्ड। तो बट देन स्टिल हमें प्रोटेस्ट करना है। वो कुछ ग्रुप ऑफ पीपल who are protesting, they are creating disturbances and हम अगर इतने अच्छे एनिमल लवर्स हैं तो why are we not letting them getting them shifted to the shelters? Why are we not letting them get to vaccinated, sterilized? कई ग्रुप्स का ये भी मानना आया है, कितने एनिमल लवर्स का ये भी कहना आया है कि हमें स्टेरिलाइजेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें वैक्सीनेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें रीलोकेशन से प्रॉब्लम है। हमें प्रॉब्लम इस बात से है कि वो अपने परिवारों के से अलग हो जाएंगे। मैं पूछती हूँ क्या उनकी ज़िंदगी से बड़ा है उनका परिवार? मैंने अभी बोला कि कितनी सारी ऐसी मदर डॉग्स हैं जो सिर्फ ड्यू टू हंगर अपने डॉग्स को खुद, अपने पपीज़ को, अपने किड्स को खुद खा जाते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है एंड नॉट जस्ट मी। हम कहीं भी अगर हमने ज़्यादा नोटिस किया हो ना तो ये रियलिटी है, रियलिटी। बट हमें ये रियलिटी को तो कभी दिखानी नहीं है, हम इस रियलिटी को तो अनदेखा कर देंगे। हमें प्रॉब्लम तो इस बात से है कि वो रिलोकेट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हम एनिमल लवर हैं, हमें उन्हें देखना अच्छा लगता है सड़क पे। कहीं ना कहीं सिक्योरिटी भी है, वो शॉपकीपर्स के सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, पुअर के लिए अगेन सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। बट मैं बोलना चाहती हूँ अगर उनके लिए कुछ बेटरमेंट कर रही है गवर्नमेंट, तो जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं या फिर जिन्होंने भी जो भी उनका कैबिनेट है, अगर कोई डिसीजन लिया है तो सोच समझ कर लिया होगा, बाकायदा डिस्कशंस हुए होंगे, उसके बाद ये डिसीजन लिया गया होगा। एंड आई मस्ट से कि हमें उस डिसीजन को कहीं ना कहीं सपोर्ट करना चाहिए, ना कि इस तरह से प्रोटेस्ट करना चाहिए। एंड प्रोटेस्ट भी हम कहते हैं कि हम पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बट हम पीसफुली प्रोटेस्ट नहीं कर रहे होते। जितने प्रोटेस्ट के केसेस मैंने देखे एंड न्यूज़ में मेरे सामने आए, आई वॉज लाइक शॉक। इसे हम पीसफुली तो प्रोटेस्ट करना नहीं ही कहते, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम नॉट जस्ट दैट, हमें तो बहुत ही मज़ा आता है ट्रेंड्स को फॉलो करने में। हम तो कभी भी दूसरे पर्सपेक्टिव को देखते ही नहीं हैं, हमारी आदत हो चुकी है, क्योंकि सब स्टोरीज़ पर लगा रहे हैं अपनी। पता नहीं कितने मिलियन का ट्रेंड जा रहा था कि डॉग्स आर दोज लाइफलेस साइलेंट सोल्स, द स्ट्रीट्स आर गॉना साइलेंट, पता नहीं क्या क्या। वही जो मैंने बोला, शॉपकीपर्स के सिक्योरिटी गार्ड्स, सब कुछ सूना सूना हो जाएगा। दीज सो कॉल्ड फैंसी ट्रेंड्स जो भी पेजेस चला रहे हैं, जस्ट please just like it's my humble request to the public, to the viewers who are listening out there, just don't go for those trends. Use your brain, use your logic, use your senses, get through it, scrutinized and manipulate, contemplate before getting into any conclusion, before getting to something which is actually worth it of saying and जिसका effect जिसका पड़े। हमें वो बात कहनी चाहिए। हमने एक बार भी नहीं सोचा कि हम क्या कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये डॉग्स की भलाई के लिए हो रहा है कि उन्हें रीलोकेट किया जा रहा है, बट देन क्योंकि हमने इस बात को तो सोचा ही नहीं, हम तो नॉनवेज कंज्यूम करते हैं, हम तो मस्त हर फीस्ट पे हमें नॉनवेज कंजम्पशन चाहिए। बट अचानक से हम क्योंकि सब कर रहे हैं डॉग प्रोटेस्ट, तो हम भी खड़े हो जाते हैं डॉग प्रोटेस्ट करने के लिए। सिर्फ उनके लिए है जो एनिमल लवर्स नहीं है, जो नॉनवेज कंज्यूम करते हैं, लाइक जिसे कहते हैं इंक्रीजिंगली कंज्यूम कर रहे हैं नॉनवेज। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि द डॉग्स मस्ट बी रीलोकेटेड, तो उन्होंने साफ साफ ये बात कही, द अर्जेंट रिस्क टू पब्लिक हेल्थ, द अर्जेंट रिस्क टू द पब्लिक। इस वजह से डॉग्स को रिलोकेट किया जा रहा है। दिस मस्ट बी कंसीडर्ड, ठीक है, ये बात कंसीडर की जानी चाहिए। नॉट जस्ट दैट, स्टेरिलाइजेशन, वैक्सीनेशन, relocating them, shifting them to the shelters, at least is better, is going to give them a better lifestyle, is going to give them a healthy lifestyle instead of living in this chaotic, busy streets, ठीक है, क्राउडेड स्ट्रीट्स में रहने से तो बेटर अच्छी ही लाइफस्टाइल मिलने वाली है। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं एक थोड़ा सा ओपिनियन फॉर द सुप्रीम कोर्ट भी रखना चाहूँगी। सुप्रीम कोर्ट ने द इंफ्रास्ट्रक्चर, द हु आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दोज शेल्टर्स ऑफ दोज डॉग्स, उनके लिए मैं कहना चाहूँगी कि इंडिया की कैपेसिटी 1 मिलियन शेल्टर्स लेने की है डॉग्स की, बट देन 5000 को ही रिलोकेट करने का ऑर्डर्स आया है सुप्रीम कोर्ट से। तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लाइक न्यूज़ में मैंने जब आर्टिकल्स पढ़े एंड तो मुझे रियलाइज़ हुआ दैट अनहाइजीन, केसेस ऑफ इन्फेक्शन, इतनी ज़्यादा एकोमोडेशन ना होना, तो दैट इज़ गोना इंक्रीज देयर डेथ रेट्स। तो उस बात का भी ध्यान रखा जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, हाइजीन पर ध्यान दिया जाए उनके। एंड येस, आई वुड लाइक टू एंड अप दिस वीडियो राइट हेयर, शेयरिंग इट ऑल अप विद माई ओपिनियंस और एंडिंग इट ऑल अप विद माई ओपिनियन। और मैं ये कहना चाहूँगी दैट प्लीज़ डू नॉट गो फॉर माइंडलेस ट्रेंड्स, go for them, like read them, analyze them, think them, contemplate and then come to any conclusion, ठीक है। तो जब हम खुद एनिमल्स को मार कर खा रहे हैं ना, तो हम एनिमल लवर नहीं हुए, तो हमें किसी ने अधिकार नहीं दिया कि हम उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट कुछ बोलें या उनके ऑर्डर के अगेंस्ट कुछ बोलें या डॉग्स को रिलोकेट करने से बचाएं। हम कोई नहीं होते।
and for this photo which is getting all across my feed on Instagram, आई एम नॉट गेटिंग इट कि इस पर क्या टिप्पणी की जाए और ये कितनी सच्चाई है इस बात में या इस न्यूज़ में. सो डू कमेंट डाउन बिलो ये सच भी है या फेक है, और अगर है भी तो भी आप अपने राय कमेंट्स में दे सकते हैं. एंड येस, डोंट फॉरगेट टू टैग मी एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो as much as possible to. Thank you so much.